Peter P. John and my family past 30 years in Pandalam, Kerala. Thanks the living God for this wonderful opportunity to share the testimony of past 30 years with Mathai Outreach Ministries, New Hope Churches International. The president and founder of Mathai Outreach Ministries is the Reverend Dr. Apostle Aib Mathai sir and Mrs. Susie Mathai. We met together at Pandalam in 1996 for the Pastors Conference at the Shines Hotel. Then and there, the God enabled us together to work for the Lord. The goal of Mathai Outreach Ministry, New Hope Churches International, is to reach the unreached and save the unsaved in the uttermost part of the world. Last 30 years, God has enabled and strengthened the Mathai Outreach Ministry to do the ministry, the mighty work for the Lord Jesus Christ. We worked at Pandalam in Pathanamthitta district, Kerala state, and the ministry now grown to all over the world, especially in many parts of the India. We, the Church of Pandalam, with the help of Reverend Dr. Aib Mathai sir and Mrs. Susie Mathai, went for the personal evangelism. Person to person, house to house, and village to village, and town to town, we traveled and we proclaimed the gospel of God. Especially, we traveled from Trivandrum to Wayanad area. We planted many churches in different parts of the Kerala. 2-3 districts we worked more than 100 places and planted churches in rented houses, and thus these house churches. Reverend Aib sir and Mrs. Susie Mathai and our evangelism team worked together with many places, and with the result, more than 3,000 people were saved and got baptized, joined the church, and also many demon-possessed people were delivered. Many sick people healed, poor people settled their living, and many people with a financial crisis were settled by God. Many students were sponsored by Reverend Aib sir for their studies. Even the people who paralyzed were healed, and those people who failed their kidneys were healed, and now both kidneys were failed people are living now. Even after 20 years, they are worshipping God with us, and it is a wonderful testimony. Even one day, 7 times we baptized people at Pandalam. One among them is Achangunju and his family, Sultan Betheri. Then and there we started church in Sultan Betheri. There hundreds of people were got baptized and the church was grown. There are failures in the ministries. Many oppositions also came from the people, local people. But our God helped us and delivered us from dangerous situations. But 30 years of totally could say the ministry was success. People were healed, delivered, many churches were planted, and many wonder-working hands of the Lord was shown in and through our ministry. We give our gratitude and thanks to the Almighty God for His grace, and also we thanks to Reverend Aib sir and his family for all the helps. May God bless you all. This is for the glory of God.
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और हमारा आज जिस समय से हम कुछ भी नहीं थे, ऐसे समय में हमारा मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री के हमारे चेयरमैन डायरेक्टर आयप मथाई सर के साथ में हमारा 22 सितंबर 2021 से उनके साथ हमारे प्यारे बेटे अभिषेक के साथ में उनका बहुत ही अच्छा परमेश्वर ने एक सुंदर रिलेशनशिप दिया और परमेश्वर के महान अनुग्रह से प्रभु ने हमारा आयप मथाई सर और आइजेक सर के द्वारा प्रभु ने मथाई आउटरीच के द्वारा प्रभु एक जबरदस्त हमारे इस राजस्थान क्षेत्र में प्रभु सेवकाई करने में प्रभु मदद किया। और जिस समय हमारे बेटे अभिषेक के द्वारा जिस समय जवानों के बीच में जब उन्होंने जब सेवकाई को शुरू करने के लिए एक निर्णय लिया तो 13 स्टूडेंट के साथ शुरू किया और आज परमेश्वर ने उनको कम से कम 13 से परमेश्वर ने आज काफी सारी संख्या में प्रभु बढ़ाया और परमेश्वर ने कई जगहों पर अलग अलग जवानों के बीच में सेवकाई करने के लिए और कई संडे स्कूल और इस प्रकार से प्रभु ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रभु सेवा करने के लिए मदद किया है। और करीब अभी सारे मिल करके अभी हमारा ट्यूशन सेंटर के लिए ट्यूशन चलाने के लिए जो लेडीज और पासवान सब मिला करके अभी 35 लोग हैं जो कि आज राजस्थान के अलग अलग जिलों में जैसे राजस्थान का बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और साथ ही हमारे पड़ोसी राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में परमेश्वर ने हमारे जीवन के द्वारा सेवकाई को करने के लिए हमें मदद किया। और इन क्षेत्रों में काफी सारे जो पेयजल के लिए बड़ी दिक्कत है, पानी पीने के लिए, और इस प्रकार से भी कई जगहों पर हमारा मथाई आउटरीच के द्वारा और हमारे सर आइजेक सर ने इस प्रकार से जो खड़े रह करके जबरदस्त इस क्षेत्र का विकास हेतु पेयजल की सुविधाएं करने के लिए भी प्रभु मदद किया है। मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं। जहां पर जो चर्च नहीं है इसी जगह पर चर्च बनाने के लिए भी मदद किया है। और एक पासवानों का एक ऐसी अवस्था में जहाँ रह रहे थे जहाँ पर मकान भी नहीं था, ऐसे स्थान में चर्च में ही रह करके सेवा दे रहा था, उस जगह पर एक सुंदर एक रहने के लिए पासवान को घर भी तैयार करके बनाने के लिए प्रभु मदद किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मथाई आउटरीच के द्वारा परमेश्वर हमारे यहाँ पर जबरदस्त काम कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री के द्वारा और भी हमारे यहाँ पर काफी सारे ऐसा जो ट्राइबल पहाड़ी इलाका क्षेत्रों में प्रभु एक पेयजल की सुविधाएं करें ताकि उसके जरिए हम और भी परमेश्वर की सेवकाई को हम शुरू करें। और ऐसा काफी सारा जो एरिया है जहां पर शिक्षा की कमी है तो हम क्यों ना हम एक छोटे छोटे झुंड में एक ट्यूशन सेंटर शुरू किया जाए ताकि वहां पर ऐसे टीचरों को तैयार करें ताकि हम भी ये सोच रहे कि और भी उनको हम कुछ मदद करके और भी ऐसे क्षेत्रों में जाकर पर शिक्षा की कमी है तो वहां पर शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, उस विषय के लिए भी आप प्रार्थना करना। और हमेशा मैं आप सभी का फिर से एक बार मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री का मथाई सर, आइजेक सर, आप सभी का हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रभु आपको जबरदस्त अपनी महिमा भरी आशीष प्रदान करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Greetings to all in the name of Jesus Christ of Nazareth. My name is Pastor Indrajit Nayak. I am doing ministry along with my family in state of Chhattisgarh. So I would like to share my brief testimony how I came to know about
Matai Outreach Ministry. Before 2017, me and my family, and along with me, some pastors, around 28 pastors, we were doing ministry with another organization. Because of some reason, we separated from that ministry, and we divided in two parts. And at the time, we had no any financial support from anywhere, and we decided that we will not join any organization and we will do ministry independently. But suddenly I met with Isaac sir online. That was great miracle for me, and we were discussing about ministry, and after that prayerfully we joined Matai Outreach Ministry as a partnership, and later we came to know that these people are very good and faithful, and we decided to do ministry with Matai Outreach Ministry. Especially I thank God that Dr. Ike Matai sir, founder of Matai Outreach Ministry, he visited to Chhattisgarh state, and we had pastors conference here, and Dr. Ike Matai sir, he ordained around 20 pastors. After his visit, our ministry growing day by day. We are doing ministry since 10 years with Matai Outreach Ministry, and along with me right now around 30 pastors are doing ministry in Chhattisgarh state and Telangana and Odisha also. So we praise God that Matai Outreach Ministry is continuously supporting us financially. We are praying for donors and partners, those who are supporting us. Please pray for us. We are doing ministry in this area. This is very backward and remote area. We would like to win many perishing souls for His kingdom. May the God bless you. Amen. जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अशोक त्रिभुवन, न्यू होप चर्च ऑफ इंडिया श्रीरामपुर से बात करता हूं कि प्रभु को धन्यवाद हो। जब मैं सेवकाई में 20 साल हो गए मुझे न्यू होप चर्च ऑफ इंडिया में सेवा करने के लिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ये मिनिस्ट्री जब हमारे श्रीरामपुर में चालू हो गई, तब पास्टर जॉन वर्गीस मेरे पास आए और बोले, पास्टर जी आप साइकिल पे जाके इधर उधर जाके तुम अच्छा तरह प्रभु की काम कर रहे। तब मैं बोला, पास्टर जी मैं भी कौन सी तरह मिनिस्ट्री में सेवा करने की मेरी इच्छा है। तो वो बोले, पास्टर जी अब तुम हमारे साथ काम करने को तैयार है क्या? मैं बोला मैं तैयार हूं। तब अंकल के पास वो मुझे लेके आए। अंकल की हमारी पहचान हो गई। तब अंकल बोले, मेरे एक दृष्टांत है, बहुत जगह जाके मैं सुसमाचार बता के बहुत सारे आत्मा जीतने का है मुझे ये मिनिस्ट्री के द्वारा। तब अंकल ने उनका जो दृष्टांत हम सबको बताया, वो दृष्टांत लेके मत्ती को शुभवर्तमान 28 अध्याय 18-19 वचन में लिखेला है, जाओ तुम जाके लोगों को सुसमाचार बताओ, उनको चेले बनाओ, उनको पढ़ाई शिक्षण दो और उनको परमेश्वर के राज्य की बातें में बताओ। ये वचन में जैसे लिखा है, वचन हमको बताया, ये मेरी सेवकाई है। वैसा मैं भी उनके साथ उस टाइम से सेवा करने लगा हूं। अभी मैं श्रीरामपुर और बेलापुर ये दोनों जगह चर्च की स्थापना की है। अभी बेलापुर में हमारा 100 लोगों की मंडली है और श्रीरामपुर में 200 लोगों की मंडली में। मैं ऐसे लोगों में गया जो लोगों को यीशु मसीह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, वो लोगों की लैंग्वेज, उनकी भाषा मुझे मालूम नहीं थी। जब मैं वो लोगों में सेवकाई करने को गया, तब वो लोगों की भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी। जब उनके पास मैं गया तो लोग थोड़ा विरोध करने वाले लोग थे। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को सुसमाचार बताया, यीशु के बारे में बताया,
और संडे साल से मैं मत्ते अंकल के साथ सेवकाई करता हूं। जब अंकल के पास हम सेवकाई अंकल के साथ जब हम सेवकाई चालू किए तो मुझे याद आया कि जब अंकल ने हमारे श्रीरामपुर में आए तो 150 लोगों को हमने उस टाइम बपतिस्मा दिया। हमेशा अंकल जैसे जैसे श्रीरामपुर में आते थे सबसे ज्यादा बपतिस्मा हमारा होता था। हमारी चर्च में बढ़ोतरी हो गई। हमारे चर्च में सब कुछ परमेश्वर ने वचनों में, प्रार्थना में, और हर रोज हमारे जो आदिवासी समाज के लोग जो है हर रोज 8:30 बजे इकट्ठा होते, प्रभु की आराधना करते, और हमारी चर्च में लीडर भी बन गए। बहुत सारे लीडर अभी प्रचार कर रहे, सुसमाचार बता रहे, प्रार्थना कर रहे, और जगह जगह जाके लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे। ऐसा परमेश्वर का काम हमारे न्यू होप चर्च ऑफ इंडिया और आईपे मते अंकल के द्वारा हमने चालू किया, और परमेश्वर का राज्य बढ़ा रहा है। अभी श्रीरामपुर में हमने न्यू होप चर्च ऑफ इंडिया की एक बिल्डिंग भी बनाई, और बेलापुर में भी हमारा इरादा है कि उधर भी एक चर्च की बिल्डिंग होना चाहिए। और परमेश्वर का काम न्यू होप चर्च ऑफ इंडिया से और अंकल के द्वारा बढ़ गया है। और इसाक ब्रदर भी हमारे साथ है, वो भी हमको हमेशा हमारे को फोन पर बात करते, वीडियो कॉल करके अंकल हमको पूछते तुम्हारी सेवकाई कैसी चालू, तुम्हारा परिवार कैसा चालू है, ऐसे बारे में हमारे परिवार को भी पूछते। हमेशा हमको सपोर्ट भी करते, वचनों का भी सपोर्ट करते, और जब जब हमको कुछ गरज लगती वो हमारी आर्थिक भी गरज हमारे पूरी करते। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आईपे मत अंकल को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अभी तक हमको हर एक बातों के हमारा ख्याल रखा है, और हमको न्यू होप चर्च ऑफ इंडिया में प्रभु में रखा है। इसलिए हम न्यू होप चर्च में इंडिया में शामिल हो, और परमेश्वर का राज्य हम बढ़ा रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरी छोटी सी गवाही है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, और मोते अंकल को भी धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। मेरा नाम पास्टर विजय और मेरा नाम पास्टर नैन्सी है, और हम लुधियाना पंजाब से हैं। हम यूथ मिनिस्ट्री भी लुधियाना पंजाब में कर रहे हैं, और हम पिछले काफ़ी सालों से मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, और इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर हमने बहुत सी आशीष को अपने जीवन में पाया है। हमारी सबसे पहले मुलाकात अपोस्टल आइब जी के साथ 2012 में हुई, और 2012 1 नवंबर को मैंने उनसे बैप्टिज्म लिया, और उस समय के दौरान से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित करा, और इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत सिखाया और बढ़ाया है। और 2020 में हम दिल्ली कॉन्फ्रेंस में गए, और वहाँ पर परमेश्वर ने हमें एज अ यूथ लीडर और वर्शिप लीडर इस्तेमाल करा, और 2022 में 14 नवंबर को परमेश्वर ने हमारा अपोस्टल आइब जी के द्वारा ऑर्डिनेशन करा, और तब से हम मिनिस्ट्री में हैं और यूथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और इस समय के दौरान परमेश्वर ने हमें बहुत सारे यूथ तक पहुंचने का फजल बख्शा, और आज तक हमने बहुत सारे यूथ तक रीच आउट करा, और आज तक हमने बहुत सारी यूथ मीटिंग्स करी हैं। और एट प्रेजेंट हम मथई आउटरीच मिनिस्ट्री में एज अ यूथ लीडर वर्क कर रहे हैं, और एटलीस्ट 10 स्टेट्स के लीडर्स जो है हमारे साथ परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। मैंने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर एक नई विज़न को पाया, अपनी कॉलिंग को जाना, और अब हम यूथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord.
हमारी तरफ से MOM कलीसिया और सब पास्टर साहबानों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं पास्टर राजेश गिल, पंजाब अमृतसर से, और प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के अनुग्रह से 14 वर्ष से हम MOM चर्च से जुड़कर, मिनिस्ट्री से जुड़कर सेवकाई में हैं और प्रभु की सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। 2012 में अपोस्टल आइप जी, प्रभु के दास पास्टर थॉमस चैरियन के द्वारा हमें प्रभु के अनुग्रह से उनसे मुलाकात हुई। वो 2014 में फतेहगढ़ चूड़िया में आए और वहां एक मीटिंग रखी गई और प्रभु ने बड़े कार्य किए। पहले ही बार बड़े कार्य किए और प्रभु के अनुग्रह से बहुत लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्म लिया, और तभी से आज तक प्रभु का धन्यवाद। प्रभु बड़े कार्य कर रहा है और हमें पंजाब में इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पंजाब में MOM कलीसिया बन रही हैं। प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु जगह पर जगह हमें इस्तेमाल करता है। प्रभु के दास के प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु के दास हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं हमारे संग है। और बाद में 2012 के बाद में भी अपोस्टल आइप जी पंजाब में आए और प्रभु ने बहुत बड़े कार्य किए। उनके बाद पास्टर एजिक साव पंजाब में आए और उनके द्वारा भी प्रभु ने बहुत कार्य किए, बहुत लोग बचे। और खुदावन का धन्यवाद, वो लोग आज भी खुदा में चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु आगे भी जो इस मिनिस्ट्री के साथ हम हैं और इस मिनिस्ट्री को बढ़ाए और इस मिनिस्ट्री के लिए नए दरवाजे खोले और पंजाब में ये मिनिस्ट्री बहुत बढ़े। और प्रभु का धन्यवाद। आप सब हमें प्रार्थनाओं में याद रखें। हमारी बेटी नैन्सी, पास्टर नैन्सी, और बेटा विजय लुधियाना में सेवकाई में है। वो भी MOM मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जो हमारी मिनिस्ट्री यूथ में भी है, चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री है, और प्रभु का धन्यवाद आउटरीच मिनिस्ट्री है। तो प्रभु का धन्यवाद। बाइबल स्टडी है और पास्टर मीटिंग कंडक्ट करना, प्रभु का धन्यवाद। ये जो हमारा विजन है, खुदावंद का धन्यवाद। और इस के माध्यम से ये सब कार्य को करते हुए, प्रभु के कार्य को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमें प्रार्थना में याद रखें। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो आज के इस सुंदर समय के लिए। मैं सबसे पहले अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, दोबारा आने वाले यीशु मसीह को महिमा देता हूँ कि जो कुछ मेरे जीवन में आज तक हुआ है उसके लिए मैं अपने यीशु मसीह को महिमा और उसका ही गुणगान करता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर जो भला है और जिसने मेरे जीवन में भलाई लाई है, अच्छाई लाई है, और मुझे 1991 में अपना बेटा बनाने के लिए चुना है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लोग शायद 1991 में बहुत सारे लोग इस दुनिया से अर्थक्वेक में चले गए थे,
पर उसमें परमेश्वर ने मुझे बचाया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी बातों के पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उन सब बातों को ज्यादा नहीं दोहरा करके, और जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा, भलाई लाने में परमेश्वर ने मेरी अगुवाई किया, इसके लिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वहां से बहुत सारी बातों को, फिर मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया, मैं दुखी था। गाजियाबाद बारादरी एक चर्च है, वहां पर हम चर्च लेते थे। बहुत सारे लोग हिंदू बैकग्राउंड के लोग जिन्होंने कभी भी यीशु मसीह का संदेश नहीं सुना था, उनको हमने आत्मिक रीति से बढ़ाया, शिक्षा दिया, उनको बपतिस्मा दिया और बढ़ाने का काम किया। पर एक समय था जब 2011 में मैं एक निराशा में था। कोई भी मेरे को कहीं से भी कोई मदद नहीं थी, कोई भी मेरे साथ लीडर नहीं था, मैं अकेला पड़ गया था। और उस समय हम पारिवारिक तौर से दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कुछ हमारे लिए मार्ग खोले, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और आर्थिक रूप से हम बड़े परेशान थे। शारीरिक रीति से भी भोजन हमारे पास पर्याप्त नहीं होता था। इन सब बातों के लिए चर्च में भी इतना हमको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता था, तो बड़ा मुश्किल था। और हम दुआ कर रहे थे, प्रभु आशीष दे। 2011 की बात कर रहे हैं, 2000 पूरा साल हम दुआ में, प्रार्थना में लगे हुए थे। 2012 में परमेश्वर के दास आईपी अंकल, आईपी सर दिल्ली में आए, और उनके साथ हमारे जो बाइबल कॉलेज देहरादून एनटीसी कॉलेज के एक टीचर थे चिरियन सर, वो उनके साथ आए। उनके साथ जब हम कॉलेज में थे, अब्बा फादर के साथ हम बहुत सारे प्रार्थनाओं में हम उनके साथ बैठते थे, उनके साथ हम ज्यादा समय बिताते थे, इसलिए शायद उनका प्रेम था। जब आईपी अंकल दिल्ली में आए, अनिल सिंह करके एक पास्टर थे जो नेपाल से संबंध रखते थे, उनके पास आईपी अंकल आए थे और चिरेन सर आए थे। एक प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और उसी बीच चिरेन सर ने मेरे को फोन किया था कि आप आइए, मेरे को मिलिए। परमेश्वर की महिमा हो। पूरे साल भर की प्रार्थना, जब हमारे पास आर्थिक रीति से और ये जरूरतें जब हमारी पूरी नहीं हो रही थी, और हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर कुछ मार्ग खोले, उस परिस्थिति में चिरेन सर ने मेरे को फोन किया और मेरे को बुलाया। ये आरके पुरम की बात है, जहाँ पर वहाँ पे चर्च था अनिल सिंह जी का, और वहाँ पर जब मेरे को बुलाया गया तो वहाँ पर आईपी अंकल से मेरी मुलाकात हुई। और आईपी अंकल से जब मुलाकात हुई, उन्होंने मुश्किल से 10 मिनट का मुझे मेरी गवाही टेस्टमनी लिया, और फिर हम आईपी अंकल के साथ मिलने लगे, जो कि बिहार का बॉर्डर है। वहाँ पर परमेश्वर ने हम सबों को आशीष दिया। इमानुएल आजाद पास्टर हैं जो हमारे दिल्ली में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हमने बहुत सेवा किया। उनके चर्च को भी अभी मताई आउटरीच मिनिस्ट्री न्यू होप चर्च के साथ वो काम कर रहे हैं, और वो प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु आशीष दे। और झारखंड में भी हमने कुछ समय हमने सेवा किया। वहाँ पर जेम्स पास्टर हैं देवघर में, पास्टर प्रेम अल्बर्ट देवघर में हैं, जो हमारे साथ रहे हैं, और जेम्स पास्टर हैं जो प्रभु की महिमा करते हैं, वहाँ पर प्रभु की बड़ाई करते हैं। और मताई आउटरीच मिनिस्ट्री न्यू होप चर्च ने हमको बहुत अगुवाई किया, आशीष दिया। हम भी दौड़े हैं परिवार के तौर से, लोगों के पास, लोगों को सकते हैं, सेवकाई करते हैं। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे कि हम इस सेवकाई को करते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। तो यहीं पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि इन सारी जगहों में परमेश्वर ने हमको आशीष दिया। धन्यवाद यीशु, तेरी बड़ाई हो। यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। आपको जय मसीह की।
सबको जय मसीह की। मैं हूँ पास्टर सुभाष चक्र नारायण। आपको जल्द ही वापस आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ है अंजलि सुभाष चक्र नारायण जो कि मेरी वाइफ है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2006 साल में मथे आउटरीच मिनिस्ट्री न्यू होप चर्च ऑफ इंडिया के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर अपोस्टल आइप मथई, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने अपना विज़न मुझे शेयर किया, मुझे बताया, अपना दर्शन उन्होंने बताया। और फिर अंकल के साथ हम जॉइंट हुए और 2006 साल से 2026 अभी मुझे इस संस्था में 20 साल हुए हैं। और मैंने देखा है कि रेवरेंड डॉक्टर अपोस्टल आइप मथई, इनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है और वो पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए हैं। परमेश्वर की आवाज़ को वो सुनते हैं और परमेश्वर जो उन्हें बताते हैं वो करते हैं। जब मैं नया मिनिस्ट्री में था तो अपोस्टल आइप मथई निवासी तालुका में जब आते थे तो बहुत से ओपन मीटिंग सेमिनार होते थे और वो छोटे छोटे विलेज में हमारे साथ आते थे, लोगों को बपतिस्मा देते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे, टीचिंग देते थे और बहुत से बीमार लोग के लिए वो प्रार्थना करते थे। उनके प्रार्थना के द्वारा बहुत से लोगों को छुटकारा मिला है, बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से बंधन मुक्त हो गए हैं और लोगों को चंगाई मिली है। उनमें से मुझे एक गवाही आज भी याद है कि अंकल की ओपन मीटिंग थी नेवासा में और एक सेजल नाम की एक छोटी लड़की थी जिसका पैर फ्रैक्चर था। जैसे अंकल बीमार लोग के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो एक आवाज़ उसके पैर में हुई और उसका टेढ़ा पैर जो है वो सीधा हो गया और परमेश्वर ने उस छोटी लड़की को चंगाई थी। और उस चंगाई के द्वारा एक परिवार हमारे चर्च में आया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मथे आउटरीच मिनिस्ट्री न्यू होप चर्च ऑफ इंडिया की कलीसिया नेवासा तालुका में बहुत ही बढ़ रही है। मैं नेवासा फाटा, बकू पिंपलगांव, बेल पिंपलगांव, भालगांव, इन जगह पर परमेश्वर की सेवा करता हूँ। अभी मथे आउटरीच मिनिस्ट्री न्यू होप चर्च ऑफ इंडिया के द्वारा 6 जगह पर कलीसिया स्थापित है और परमेश्वर ने अच्छी लीडर हमें दिए हैं। महिला मीटिंग होती है, यूथ मीटिंग होती है और संडे स्कूल भी चर्च में होता है। इस सभी के लिए परमेश्वर की स्तुति हो और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए, मेरे वाइफ के लिए। मुझे एक लड़का और एक लड़की भी है, उनके लिए भी आप प्रार्थना में आप याद रखिए। बहुत सी जगह पर हम जा रहे हैं। इस साल भी हम 5 जगह पर जाकर परमेश्वर की कलीसिया को स्थापित करने वाले हैं और बहुत से लीडर को हम तैयार करने वाले हैं। हमारे चर्च में अभी तक 12 लीडर को हमने बाइबल स्कूल के लिए भेजा है और वो बाइबल स्कूल करके आए हैं और बहुत सी जगह पर वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। इन सभी के लिए परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनू समृत गिरवाल है और मैं ग्राम बावड़ी खेड़ा, जिला रतलाम और मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों के बीच में एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कैसे मथई आउटरीच मिनिस्ट्री में आया हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं कि जब मैं बाइबल स्कूल के लिए दिल्ली में था उस समय इसाक सर और आइप मथई सर का एक मीटिंग था
जो हमारे कॉलेज में ही हुआ था। और उस कॉलेज में हम लोग ये प्रोग्राम को अरेंज करने में और काम करने में हमने सहयोग किया और सर से मेरी मुलाकात हुआ और इसाक सर ने मुझे पर्सनली अपना नंबर दिया और बोला बेटा कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप मुझे कॉल करिएगा। तो उसके 1 महीने बाद ही लॉकडाउन का समय आ गया, लॉकडाउन लग गया था। अब उस समय में मुझे ख्याल आया और मैंने इसाक सर को मैसेज किया और इसाक सर ने मुझे सपोर्ट किया। कोविड के टाइम पे लगभग 3 महीने तक इसाक सर मुझे 2 से 3 परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अपने कामों के लिए चुना और मैं इसाक सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसाक सर मुझे प्रभु में दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ाने में गाइड किए। मुझे जब भी मुझे निराशा हताशा होती थी मैं सर को मैसेज करता, सर मुझे वचन के द्वारा और अच्छे से उदाहरण दे दे के मुझे समझा देते कि और मैं आज जो भी हूँ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसाक सर और आइप मताई सर को मेरे जीवन में दिया तो मैं आज इस्टेब्लिश हूँ और मैं प्रभु में मजबूत हूँ, काम और आगे बढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु मुझे सहायता करे, मदद करे। और उसी के बीच में मुझे इसाक सर ने एक प्रार्थना भवन बनाने के लिए भी मदद किया और प्रार्थना भवन बनाते समय कुछ आरएसएस के लोग आए, उन लोगों ने मना किया कि आप यहाँ पर कुछ भी आपके ईसाई धर्म का काम यहाँ नहीं होना चाहिए इस गांव इस एरिया में। तो मैंने उस चर्च का स्ट्रक्चर जो था वो घर के तब्दील कर दिया, घर में तब्दील कर दिया उसको और हम लोग हाउस चर्चेस चलाने शुरू किया और आज हम लोग अलग अलग जगह में हाउस चर्च चलाते हैं। और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, इसाक सर का और आइप सर का धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग मुझे मदद किए और आज यहाँ तक आप लोगों के बीच में मैं गवाही को बांट सका। धन्यवाद सबको, जय मसीह की। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरे तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कुना डिगाल, मैं उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट कंधमाल से हूँ। आज मैं दिल से मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री का फाउंडर आइप मथाई साहब और मिशन डायरेक्टर आइजक सर को दिल से धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। मिनिस्ट्री शुरू किया था बहुत समय मेरे लिए बहुत एक कठिन समय था। मेरा आर्थिक रूप से बहुत बड़ा समस्या था। कई बार खाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं होती थी। उस टाइम हमारा जिला में, हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा एक परसिक्यूशन हुआ जिसके कारण बहुत घर जला दिया। बहुत मसीह लोग इधर उधर भाग रही थी। मैं भी मजबूर हो गया था घर छोड़ के बाहर दौड़ने के लिए। मेरी तरफ अंधेरा और निराशा छाया हुआ था, जीने के लिए कोई आशा नहीं था। ऐसा परिस्थिति में मेरा लाइफ गुजर रहा था। मैं एक आशा ढूंढ रहा था। उस टाइम मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह का एक हाथ होके मेरा जीवन में आया। आउटरीच मुझे आत्मिक रीति से संभाला, आर्थिक रूप से सहायता किया, मुझे एहसास दिलाया इस प्रकार परिस्थिति में तुम अकेला नहीं, हम तुम्हारे साथ है। आज उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट कंधमाल में गांव-गांव में हमारा मिनिस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रहा है और आज अगर मैं आप लोग के बीच में खड़ा होके कुछ मेरा टेस्टिमनी का थोड़ा छोटा भाग आप लोग के बीच में
बताने के लिए मैं सक्षम हुआ, तो उनके पीछे प्रभु यीशु मसीह का और मथाई आउटरीच का बहुत बड़ा एक योगदान है। कंधमाल जिला में गांव-गांव में मिनिस्ट्री करने के लिए, फ्री ट्यूशन चलाने के लिए, यूथ मिनिस्ट्री करने के लिए मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री हमें सहायता किया। हमारे साथ पास्टर भाई लोग भी है जो हमारे साथ कंधमाल जिला का डिफरेंट विलेज में वो लोग काम करता है। प्रभु मुझे एक छोटा परिवार से लाके मथाई आउटरीच में जुड़कर एक लीडरशिप लेके उड़ीसा कंधमाल जिला में काम करने के लिए प्रभु मुझे सहायता दिया। और लेकिन आप लोग मुझे रहने के लिए, घर बनाने के लिए और मदद किया, मुझे जाने आने के लिए बाइक भी दिया, बहुत चीज़ आप लोग मुझे मदद किया और चर्च बिल्डिंग करने के लिए भी सहायता दिया। और मेरा फाइनेंशियल कमजोरी के समय में मथाई सर और आइजक सर मुझे सहायता दिया। लोग मुझे भरोसा किया और मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री के जरिया से उड़ीसा कंधमाल जिला में जिम्मेदार लेके काम करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दिया। मेरा आत्मिक जीवन में और आर्थिक रूप से भी आप लोग मुझे मदद किया। मेरे लिए हमेशा आप लोग प्रार्थना में मुझे संभाला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष करे और आने वाले दिनों में आपके जरिया से जो खोया हुआ आत्मा प्रभु यीशु मसीह के जरिया से उद्धार पाए। आप लोग मेरा छोटा ये टेस्टिमनी सुना है, इसलिए सभी को मेरे तरफ से जय मसीह की और एक बार प्रेज द लॉर्ड। Greetings to all in the name of our precious and Savior Jesus Christ. My name is Samson Gaja and I was born into a non-Christian family. My parents worshipped idols. When I was 17 years old and suffering from an illness, my parents admitted me to a hospital in Chennai, Tamil Nadu state. The doctors said that your son would die. At that time, our parents left me alone in the hospital, saying they don't want a son who was going to die. I was saved through the gospel of Jesus Christ in the hospital. God called me for his gospel ministry. Jesus healed me and called me for his gospel ministry. Glory be to God's holy name. It is a blessing for me to be involved in God's gospel ministry with Methai Outreach Ministries. The reason I joined this ministry is our mission director, Brother Isaac Esau. Here is how in 2017 year, 2 days before Christmas, my friend Mike Pannell told me about Isaac Esau. During the Christmas time, my entire family unwere in a very difficult situation, even lacking food with my children. I texted Brother Isaac Esau, who was on a flight journey from India to the USA. Understanding my situation, he immediately sent some financial assistance through Western Union. Brother Isaac, Good Samaritan. The parable of the Good Samaritan teaches that everyone is our neighbor, requiring love, compassion, and action
regardless of social, racial, or religious barriers. It highlights that true sacrificial help should be given without expectation of reward. From that day, God's mercy in the form of Brother Isaac Esau showed me grace in my life, enabling me to serve God, eat 3 meals a day, and preach the gospel. A year later, Brother Isaac spoke to Bishop I.P. Mathai of Mathai Outreach Ministries, who was president, gave a good testimony about me and helped me join Mathai Outreach Ministries. The leaders of this organization, family members, are greatly guided and anointed by God. The Lord inspired me to serve in India under their leadership. We need good leaders. Without leaders, the people perish. 2 years after joining this ministry, my wife became bedridden with chronic kidney disease. She needed dialysis treatment. It cost 30 to 50 rupees, thousand rupees a month in Indian rupees. I'm a poor servant of God. How can it possible? I prayed with great anguish from 2019 to 2022. The ministry and my brother Isaac supported me financially for my wife's treatment and in all other times through prayers showing God's love. Thank you. In 2023, my wife passed away in the Lord. I lost my own house to cover her medical expenses. I lost everything. I'm helpless. Afterwards, I prayed and asked the Lord. The Heavenly Father told me, leave your state, Chennai, and go to Andhra Pradesh, which I will show you and preach the gospel there. I will bless you there. I am your God. I am the Lord your God. I also brought a motorcycle and 2 sets of clothes. I traveled by motorcycle nearly 500 kilometers and visited 150 villages and preached the gospel. I baptized over 50 people. God performed many amazing works in my ministry in these 2 years. After joining Mathai Outreach Ministries, I have never faced any difficulty regarding food and clothes. I am blessed. We have started our ministry in Andhra Pradesh state and worship services are being held in 3 locations. We need a place to build a church. Please pray for us. A discipleship program is conducted once a month according to Matthew 28th chapter 18th verse 19. Thank you. God bless you all. Thank you, Mathai Outreach Ministries. Just प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम पास्टर दीपक शुल्की और ये मेरा परिवार है। बेटी का नाम स्तुति और स्तवन और मेरी पत्नी अनिता। हम पूरा परिवार के साथ मैं उक्किल गांव में जो महाराष्ट्र का एक विलेज है उसमें सेवकाई कर रहा हूँ। 2008 में मैंने इस गांव में सेवकाई के लिए शुरुआत किया। जब शुरुआत किया तब बहुत सारे थोड़े लोग थे, 2-4 फैमिली थी।
तो मैं फैमिली लेकर मैं सेवकाई कर रहा था। एक परिवार में जाकर मैं कलीसिया एक प्रार्थना ले रहा था। कुछ दिन 2-3 साल मैंने घर जाकर प्रार्थना किया। फिर कुछ दिनों के बाद एक समाज मंदिर रहता है, उस समाज मंदिर में मैंने हर एक संडे का वर्शिप लेने के लिए शुरुआत किया। कुछ दिन मैंने मेरा वर्शिप जो है संडे समाज मंदिर में लिया। तब कुछ दिनों के बाद जो कलीसिया के लोग हैं उन्होंने कहा हमारे पास एक हमने खुद की एक जगह खरीदी है, जो ये भवन आप देख रहे हैं उसमें उस जगह पर खड़ा है। बोले ये जगह आप ले लो और इसमें एक प्रार्थना के लिए छोटा सा भवन बनाओ। तब 2013 में हमने ये भवन बनाया। जब ये भवन बनाया तो मैंने कलीसिया से कुछ दान इकट्ठा किया और कुछ मेरे ओर से मैंने पैसे डाला और इस भवन को बनाने की शुरुआत किया। लेकिन ये भवन आधा तक आ गया और हमारे पैसे खत्म हो गए। तब जब मत्ती आउटरीच मिनिस्ट्री जब मैं रिपोर्ट उनको भेजता था, उनको मैंने फोटो भी भेजा कि हमारा कलीसिया आधा तक हुआ है, लेकिन मैंने कुछ मांगा नहीं। फिर भी मत्ती आउटरीच मिनिस्ट्री ने इस भवन पूरा बनाने के लिए पूरा सहयोग दिया, सपोर्ट किया और ये भवन बन गया। इस भवन में 2008 से अभी तक बहुत सारे लोगों ने आकर सुसमाचार सुना है, बैप्टिज्म लिया है कुछ, और बहुत सारे लोग प्रभु में आए हैं। जब आप हर संडे यहाँ कुछ 50 से 100 तक लोग आते हैं। जब प्रोग्राम रहता है 100 से अलग ऊपर लोग यहाँ आकर प्रभु की आराधना करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सेवकाई में मत्ती आउटरीच मिनिस्ट्री ने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारा प्रार्थना किया और उनके मत्ती आउटरीच मिनिस्ट्री और पास्टर लोगों की प्रार्थना की वजह से ये यहाँ की सेवकाई खड़ी रही है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने सारा हमें सपोर्ट किया है। और जब मैंने ज्वाइन हुआ मिनिस्ट्री में तब एक पासवान के स्वरूप में मैंने ये मत्ती आउटरीच मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया। लेकिन 2016 में मत्ती आउटरीच मिनिस्ट्री ने मुझे महाराष्ट्र का एक लीडर बना दिया। तब जब मैं लीडर बन गया तब मेरे साथ 10 लोग काम कर रहे थे, लेकिन काम बढ़ गया और काम बढ़ने के बाद मत्ती आउटरीच मिनिस्ट्री ने सोचा कि हम चलो इस ग्रुप को हम 2 भाग बनाएंगे। तो 2 रीजन में ये महाराष्ट्र की सेवकाई को डिवाइडेड किया, एक श्रीरामपुर रीजन और एक नेवासा रीजन। जो श्रीरामपुर रीजन है उसमें मैं लीडर काम करता हूँ और रिपोर्ट का काम मैं देखता हूँ। अभी मेरे साथ 3 लोग पास्टर लोग काम कर रहे हैं, जो एक पुणे में है, एक दौंड में है और एक बीड डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। प्रभु को दिल से मैं फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सेवकाई के लिए और धन्यवाद देता हूँ मत्ती आउटरीच मिनिस्ट्री के लिए, उनके प्रार्थना के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, उनके फेलोशिप के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ उनका सपोर्ट, उनका प्रार्थना ऐसे ही जारी रहेगा। आपने मेरा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन सुना, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर ठाकुर दास है। मैं जम्मू कश्मीर यूटी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर एक छोटे से गांव करीमची में रहकर प्रभु की सेवा करता हूं। मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हम मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री के साथ कैसे जुड़े। 2023 2 अक्टूबर की बात है। मैं एक पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए श्रीनगर में गया हुआ था और वहाँ मेरी मुलाकात प्रभु के आदरणीय दास पास्टर इसहाक जी के साथ हुई और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैंने उनको अपना जो विजन था, दर्शन था, उनके साथ साझा किया और ऐसे हम दोनों के जो नंबर है एक दूसरे के पास एक्सचेंज हुए। तो हमारी बातचीत होती रही, वो काफ़ी बातचीत होती रही, वो काफ़ी मुझे प्रभु के वचन से उत्साहित करते रहे और उन्होंने काफ़ी मेरे लिए प्रार्थना की, काफ़ी मेरे लिए उन्होंने यहाँ की मिनिस्ट्री के लिए मदद और सहायता की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने से प्रभु ने मुझे बहुत आशीष और बरकत दी और 2023 से जब मैं प्रभु के आदरणीय दास के साथ मिला और प्रभु के आदरणीय दास पास्टर इसहाक जी ने टाइम पर मुझे प्रभु के वचन से उत्साहित किया और बहुत सारी बातें जो है मुझे प्रभु के वचन से सिखाई और जो हमारी यहाँ की मिनिस्ट्री के लिए बड़ी एक आशीष और बरकत का कारण हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो इम्पैक्ट है आउटरीच मथाई मिनिस्ट्री का, वो यहाँ के लोगों के ऊपर, यहाँ के समुदाय के ऊपर, यहाँ की चर्च के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने से हमारे कलीसिया में काफ़ी लोगों की बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी लोग आत्मिक रीति में बढ़े हैं। ये इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने से ये जूम मीटिंग पे बार बार मीटिंग्स होती है और हमारी कलीसिया का एक नौजवान बेटा करण है, बेटा रोहित है, वो भी इसमें जुड़ते हैं और बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनको वो नौजवानी की ओर बढ़ रहे हैं, नौजवान है और उनको उत्साहित किया जाता है, परमेश्वर के वचन से उन्हें सिखाया जाता है। और वही करण बेटा आज कलीसिया में वो चीज़ों को जो मथाई आउटरीच मिनिस्ट्री के द्वारा उसने सीखी हुई हैं वो लोगों को बताता है और यहाँ की कलीसिया के लोकल बच्चों को उत्साहित करता है और प्रभु में लेकर और ज़्यादा उनको उत्साहित करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छी मिनिस्ट्री के साथ प्रभु ने मुझे जुड़ने के लिए अनुग्रह किया। सबको जय मसीह की। वापस आ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त मैं इलाके में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो एरिया है वो आ गया है, लोगों के काफी नुकसान हुआ है। पहाड़ी को पहाड़ी टूट कर नीचे आ गई और बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो चुका है। पोस्ट हाथ के अगर अपोजिट आप देखें तो वो पूरा का पूरा मकान जो है वो ध्वस्त हो गया है और प्रार्थना करें इस क्षेत्र। Greetings to all in the name of our precious and Savior Jesus Christ. My name is Samson Gaja and I was born into a non-Christian family. My parents worshipped idols. When I was 17 years old and suffering from an illness, my parents admitted me to a hospital in Chennai, Tamil Nadu state. The doctors said that your son would die. At that time, our parents left me alone in the hospital, saying they don't want a son who was going to die. I was saved through the gospel of Jesus Christ in the hospital. God called me for his gospel ministry. Jesus healed me and called me for his gospel ministry. Glory be to God's holy name. It is a blessing for me to be involved in God's gospel ministry.
with Mathai Outreach Ministries. The reason I joined this ministry is our mission director, Brother Isaac Esau. Here is how in 2017 year, 2 days before Christmas, my friend Mike Pannell told me about Isaac Esau. During the Christmas time, my entire family and were in a very difficult situation, even lacking food with my children. I texted Brother Isaac Esau, who was on a flight journey from India to the USA. Understanding my situation, he immediately sent some financial assistance through Western Union. Brother Isaac, Good Samaritan. The parable of the Good Samaritan teaches that everyone is our neighbor, requiring love, compassion, and action regardless of social, racial, or religious barriers. It highlights that true sacrificial help should be given without expectation of reward. From that day, God's mercy in the form of Brother Isaac Esau showed me grace in my life, enabling me to serve God, eat 3 meals a day, and preach the gospel. A year later, Brother Isaac spoke to Bishop I.P. Mathai Outreach Ministries, who was president, gave a good testimony about me and helped me to join Mathai Outreach Ministries. The leaders of this organization, family members, are greatly guided and anointed by God. The Lord inspired me to serve in India under their leadership. We need good leaders. Without leaders, the people perish. 2 years after joining this ministry, my wife became bedridden with chronic kidney disease. She needed dialysis treatment. It cost 30 to 50 rupees, thousand rupees a month in Indian rupees. I'm a poor servant of God. How can it possible? I prayed with great anguish from 2019 to 2022. The ministry and my brother Isaac supported me financially for my wife's treatment and in all other times through prayers showing God's love. Thank you. In 2023, my wife passed away in the Lord. I lost my own house to cover her medical expenses. I lost everything. I'm helpless. Afterwards, I prayed and asked the Lord. The Heavenly Father told me, leave your state, Chennai, and go to Andhra Pradesh, which I will show you and preach the gospel there. I will bless you there. I am your God. I am the Lord your God. I also brought a motorcycle and 2 sets of clothes. I traveled by motorcycle nearly 500 kilometers and visited 150 villages and preached the gospel. I baptized over 50 people. God performed many amazing works in my ministry in these 2 years. After joining Mathai Outreach Ministries, I have never faced any difficulty regarding food and clothes. I am blessed. We have started our ministry in Andhra Pradesh state and worship services are being held in 3 locations. We need a place to build a church.
Please pray for us. A discipleship program is conducted once a month according to Matthew 28th chapter 18th verse 19. Thank you. God bless you all. Thank you, Mathai Outreach Ministries. Just